Hello, learners. Today we will explore the fascinating process of lipid digestion and absorption, a topic that is not only fundamental to physiology but also highly relevant for medical entrance and university examination. So, let us start digestion and absorption of lipid. So, before we discuss the individual step, let us understand the overall journey of dietary lipid throughout gastrointestinal tract. So in this slide, it provides an overview of lipid digestion and absorption. बिकॉज जो डाइटरी फैट्स होते हैं जो लिपिड्स होते हैं दे कैन नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली एज दे आर वाटर insoluble, so they undergoes this series of coordinated steps. So what are the various steps? क्या क्या है steps? First, formation डाइटरी लिपिड का intake करना, then उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, दैट इज़ द इमल्सिफिकेशन, देन एंजाइमेटिक एक्शन उस पे एक्ट करना, डाइजेशन होना, formation of nusses, and then finally absorption of lipid. These are the steps which involved in digestion and finally absorption of lipids. Before understanding how lipids are digested and absorbed, it is important to know the different types of lipid present in our diet. In our diet, there are various forms of lipids. What are the various forms of the lipid in our diet? Diet contains lipid or fat in the form of triglyceride, in the form of phospholipid, cholesterol, and cholesterol esters. And cholesterol esters, triglyceride contributes around 90 to 95% of our dietary lipid. तो हमारी जो dietary lipid होती है उसमें 90 से 95% triglyceride होता है. Then around 5% due to the phospholipids, बाकी small amount cholesterol and cholesterol esters present होते हैं. तो these are the various sources. Sources क्या है? Triglycerides के, फॉस्फोलिपिड्स के, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स के, यूजुअली एग है, लेग्यूम्स है, मीट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स, oil, fishes. These are the various sources of fat in our diet. This triglyceride, which contribute around 90 to 95% of our dietary fat, is made up of three fatty acid एंड वन ग्लिसरॉल. ठीक है, तो ग्लिसराइड में ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन होता है. और जो फैटी एसिड होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैटी एसिड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन चेन्स. कितने कार्बन चेन्स की फैटी एसिड है उसके बेसिस पे इसको हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड, देन मीडियम चेन फैटी एसिड, medium chain fatty acid, and long chain fatty acid. Long chain fatty acid. Short chain fatty acid consists of कार्बन लेस देन 6 इन नंबर. तो लेस देन 6 नंबर के जो कार्बन होते हैं उससे जो फैटी एसिड्स बनते हैं उसको हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहते हैं. 6 to 12 कार्बन चेन की जो फैटी एसिड्स होंगे उसको हम मीडियम चेन फैटी एसिड कहते हैं. एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड those which contain more than 12 कार्बन ऑफ फैटी एसिड. तो 12 कार्बन से ज़्यादा के जो फैटी एसिड्स के चेन होंगे उसको हम लॉन्ग चेन कहेंगे. And less than 6 short chain, in between 6 to 12 carbon medium chain, and more than 12 chain it is long chain fatty acid. तो इसके बेसिस पे तो जो चेन की लेंथ है it determines also the route of absorption. ठीक है, हम later on we will discuss how the chain length determine route of absorption. Now the second step is emulsification. It is a major step in lipid digestion. Okay, it is a major step in the lipid digestion is emulsification. What is emulsification? क्या होता है? It is a process of breaking down large insoluble fat globule into tiny microscopic droplets. तो लार्ज जो फैट के
इनसॉल्युबल ग्लोब्यूल्स हैं, उसको छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में, फैट के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस है, उसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है? बिकॉज जो लिपिड्स होते हैं, दीज लिपिड्स और फैट्स आर हाइड्रो phobic molecules. These are hydrophobic molecules and they have a tendency to aggregate when it comes into the aqueous environment solution. ठीक है, जो वाटर के जो वाटर के environment में जब भी फैट आता है, तो ये जो फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और ज्वाइंट होकर एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं. Therefore, this is the tendency because of hydrophobic nature of this फैट ग्लोब्यूल्स. तो इससे क्या दिक्कत होती है कि अगर फैट के ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो आपस में कोलेस करते रहेंगे तो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और जो इस पे एंजाइम को ऐड करना है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो इस पे ऐड करते हैं, स्पेशली लाइपेजेस, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इट एक्ट्स ऑन द सरफेस. वो केवल सरफेस पे ऐड करता है. ठीक है, तो एंजाइम कैन एक्ट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ दीज फैट ग्लोब्यूल्स. तो अगर इसमें लार्ज एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया अगर कम है तो लाइपेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दिस digestive enzyme, these large fat globules should be broke down into the smaller fatter unit for the better action of digestive enzyme. तो इसलिए बेटर डाइजेस्टिव एंजाइम करने के लिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं और इसकी वजह से जो एंजाइम का जो एक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज सरफेस एरिया. सो जो इफ़ेक्टिव डाइजेशन जो होता है लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स का, वो ज़्यादा अच्छा होता है जब उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर यूनिट्स में, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन. सो व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस विच फैसिलिटेट इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन को करने में कौन कौन से प्रोसेस हैं जो हेल्प करते हैं, या फिर कहो मेन ड्राइवर्स क्या हैं इमल्सिफिकेशंस के? तो जो मेन ड्राइवर है इमल्सिफिकेशन से, दैट इज़ द बाइल सॉल्ट. Okay, bile salt is very essential for the emulsification, or you can say bile salt is very essential for the lipid digestion and absorption. If bile salt is deficient, then there is a defective digestion and absorption of lipid. तो bile salt करता क्या है? Bile salt का नेचर क्या है? It is a एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल. एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल मीन्स जो बाइल सॉल्ट होते हैं उसमें दो एंड्स होते हैं, वन इज वाटर लविंग एंड अनदर इज फैट लविंग एंड. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बाइल सॉल्ट. तो उसमें जो एक साइड है वो हाइड्रोफोबिक साइड है और एक हाइड्रोफिलिक साइड है. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक इज वाटर रिपेलिंग और फैट लविंग एंड होते हैं. और ये बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? ये जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसके सराउंडिंग को पूरे कोट कर लेते हैं. इट कोट्स द फैट ड्रॉपलेट और उससे क्या होता है? इट प्रिवेंट क्लम्बिंग. तो ये जो भी फैट मॉलिक्यूल्स जीआईटी में आया, बाइल सॉल्ट उसको क्या करते हैं? उसको कवर कर देते हैं. उसको कवर कर देते हैं जिसकी वजह से अब ये जो है फैट के ग्लोब्यूल्स हैं आपस में कोलैज नहीं करेंगे. दे विल नॉट फॉर्म क्लम्प्स नहीं फॉर्म करेंगे. इससे क्या होगा? उसकी साइज इंक्रीज नहीं होगी. एंड सेकेंडरी थिंग क्या करता है ये बाइल सॉल्ट? ये जो हाइड्रोफिलिक साइट है, ये जो बाहर की ओर रहेगा, बीच के अंदर जो फैट है उसके साइड इसका फैट वाला पार्ट, फैट लविंग एंड इससे अटैच हो जाएगा और आउटसाइड में फैट, आउटसाइड में जो वाटर लविंग एंड है, हाइड्रोफिलिक साइड, वो प्रेजेंट होगा और ये ईजिली वाटर में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. और इसकी वजह से ये जो आपका इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स बन गया, इट इज़ soluble in water and it make them water soluble. तो bile salt is essential to make them emulsified fat water soluble. Secondary, this because of this bile salt there is a prevention of reclumping of fat globules. फैट ग्लोब्यूल्स के reclumping को भी ये प्रिवेंट करता है. ठीक है, दिस इज द मेजर और प्राइमरीली फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन. और क्या क्या प्रोसेसेस हैं? व्हाट एल्स? अनदर वेज आर emulsification or breaking down of large fat globules into smaller one is through the mechanical mixing. Mechanically means physically, जब
स्टमक में मूवमेंट हो रहा होता है, उससे भी सम अमाउंट फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। जब फूड इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द इंटेस्टाइन ऑल्सो लीड टू द breakdown or it will cause emulsification. In the stomach, due to the churning and peristaltic movement of stomach, it causes emulsification in small intestine because of the peristaltic movement. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो फर्दर स्मॉल यूनिट में ब्रेक डाउन होते रहते हैं। तो मेजर रोल बाइल सॉल्ट का है। बाइल सॉल्ट का रोल तब है जब फूड इंटेस्टाइन में पहुंच गया, ठीक है। इंटेस्टाइन में बाइल जूसेस ऐड हुए, उसमें बाइल सॉल्ट हुआ, फिर उसने ये सारे प्रोसेस किए। बिफोर duodenum और अपर साइड ऑफ द duodenum में फ्रॉम द स्टमक इनसाइड द स्टमक मेनली जो फिजिकल चर्निंग हो रही है और जो स्टमक की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उससे इमल्सिफिकेशन होता है, वो स्मॉलर यूनिट में ब्रेक डाउन होते हैं। तो फाइनली जो भी फूड इनटेक किया, डाइटरी जो फैट लिया, जो लार्ज उसके जो फैट ग्लोब्यूल्स थे उसको बाइल सॉल्ट के प्रेजेंस में ये स्मॉलर यूनिट में भी ब्रेक डाउन हो गया, जिससे उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई, प्लस ये वाटर सॉल्युबल हो गए और इससे जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं आपस में कोलेसिस भी नहीं हुए, उनमें क्लम्पिंग भी नहीं हुई है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। ठीक है, देन डाइजेशन नेक्स्ट जो स्टेप है, क्योंकि डाइजेशन जो मेजॉरिटी ऑफ जो लिपिड का डाइजेशन होता है इट अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट द प्रोसेस इट बिगिंस इन द माउथ अर्ली, माउथ ऑल्सो, ठीक है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। सिंस देर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम इन द माउथ, देर इज लेस अमाउंट ऑफ डाइजेशन अकर इन द माउथ एंड इन माउथ डाइजेशन अकर थ्रू द लिंगुअल लाइपेज ओनली, ठीक है। अदरवाइज कोई डाइजेस्टिव एंजाइम माउथ इटसेल्फ में नहीं प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से फैट का डाइजेशन होता है। ये जो लिंगल लाइपेज होता है वो सीक्रेट होता है वॉन एबनर ग्लैंड से, वॉन एबनर ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है, विच इज़ प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द टंग, टंग के बेस पे ये प्रेजेंट होता है और इससे अराउंड लेस देन 5% जो होता है वो लिपिड का डाइजेशन बिकॉज ऑफ लिंगुअल लाइपेज के प्रेजेंस में होता है। देन फूड फ्रॉम द माउथ इट एंटर इनटू द स्टमक और इनसाइड स्टमक देयर इज अ गैस्ट्रिक लाइपेज विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम चीफ सेल्स, ठीक है। फंडस में जो स्टमक का जो फंडस पार्ट है उसमें जो चीफ सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, एंड गैस्ट्रिक लाइपेज का फंक्शन क्या है, इट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, जो फैट्स जो डाइटरी फैट्स में ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करता है डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लिंगुअल लाइपेज भी यही करता है, ट्राइग्लिसराइड जो फूड में रहता है उसको डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। और डाइजेशन में क्या क्या होता है स्टमक में, beside this enzymatic action there is a emulsification, means due to the churning of the stomach, due to the agitation in the stomach there is a broken down of large fatty acid into the smaller one, तो वहाँ पे emulsification भी हो रहा है, वहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है जिससे ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है लिंगुअल लाइपेज का एक्शन, गैस्ट्रिक लाइपेज का एक्शन, मोस्टली ये जो एक्शंस होते हैं वो न्यू बॉर्न्स में प्रेजेंट होते हैं। इन्फेंट्स में इसका ज़्यादा रोल है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। क्यों? क्योंकि इन्फेंट्स में मोस्टली जो फूड इनटेक होता है वो मिल्क होता है, ठीक है। डाइटरी फूड जो होता है मिल्क होता है और इन्फेंट्स में जो पेनक्रियाटिक का जो एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, अभी इतना डेवलप नहीं हुआ होता है। देयरफॉर इन्फेंट्स में गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज का रोल है किसका, ट्राइग्लिसराइड के ब्रेक डाउन करने में ज़्यादा रोल है एज कम्पेयर टू एडल्ट। देन व्हाट विल हैपन व्हेन फूड एंटर इनटू द इंटेस्टाइन, फिर स्टमक में क्या हुआ, गैस्ट्रिक लाइपेज था, लिंगुअल लाइपेज के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन किया ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में और फूड एंटर करता है इंटेस्टाइन में।
अब इंटेस्टाइन में क्या-क्या प्रोसेस हो रहा है? पहला, इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसमें जो एजिटेशंस हो रहे हैं, उससे इमल्सिफिकेशन हो रहा है, उससे वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है? बड़े से छोटे-छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट, इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड स्टमक से एंटर किया इंटेस्टाइन में, जो फूड होता है उसमें क्या होगा, अभी तक बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, बिकॉज ऑफ लिंगुअल लाइपेज, इट ब्रोक डाउन इनटू द किस में कन्वर्ट हो गया है, ट्राइग्लिसराइड, ब्रेक डाउन इनटू द डाइग्लिसराइड, ब्रेक डाउन हुआ है डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में। तो जो डाइजेस्टेड फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में आ रहा है, उसमें कुछ फ्री फैटी एसिड्स हैं जो काइम के साथ स्टमक से इंटेस्टाइन में आ रहा है। तो ये जो फ्री फैटी एसिड है, जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इट विल स्टिमुलेट कोलिसिस्टिकाइनिन, सीसीके एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, सीसीके हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। कहाँ से सिक्रीट होता है सीसीके हार्मोन? इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम आई सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूodenum, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के आई सेल से सिक्रीट होता है। और क्या पर्पस होता है इसका? ये जो सीसीके हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज के एसिनर सेल को, पेनक्रियाज के जो एसिनर सेल है उसको स्टिमुलेट किया, और जिससे पेनक्रियाज की जो एसिनर सेल है वो सिक्रीट करते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। सो फ्री फैटी एसिड जो काइम के थ्रू इंटेस्टाइन में एंटर हो रहे होते हैं, वो सीसीके को स्टिमुलेट किया, क्योंकि उस काइम में क्या है, फ्री फैटी एसिड है, विच इज़ वन ऑफ द स्टिमुलेंट फॉर सीसीके। तो सीसीके स्टिमुलेट हुआ, उसने पेनक्रियाज को स्टिमुलेट किया, पेनक्रियाज ने एंजाइम को सिक्रीशन किया। जो सेकेंड एक्शन सीसीके का होता है गॉल ब्लैडर पे होता है, इट कॉजेज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर सीक्रेट्स बाइल, तो बाइल का सिक्रीशन गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में आ जाता है। और बाइल में क्या होता है? बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स, एंड व्हाट इज function? This bile salt will cause emulsification of large fat into the smaller fat droplets. So in the intestine, because of this bile cell, these larger fat droplets, fat globules broke down into the smaller fat droplets में convert हो जाते हैं। और क्या क्या एक्शन हो रहा है? अनदर थिंग इज एसिडिक काइम, जो भी स्टमक से एसिडिक काइम इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो उस एसिड से जो पर्टिकुलर एस सेल होते हैं इंटेस्टाइन के, इट स्टार्ट सिक्रेटिंग हार्मोन सिक्रेटिन, ठीक है? एसिड काइम जब अगर स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है, तो ये जो एसिडिक करेक्टर है वो ट्रिगर करता है एस सेल, जो एस सेल से सिक्रीट कराता है सिक्रेटिन। और इसका पर्पस क्या है? इट स्टिमुलेट्स इट स्टिमुलेट डक्ट डक्टल सेल ऑफ पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के जो डक्टल सेल्स हैं उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे उससे सिक्रीशन होता है बाइकार्बोनेट आयन। तो सिक्रेटिन स्टिमुलेट पेनक्रियाज टू सिक्रीट बाइकार्बोनेट आयन। तो जब भी फैटी फूड आया तो उसकी वजह से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आपके इंटेस्टाइन में आ गए, काइम की वजह से, एसिड काइम की वजह से बाइकार्बोनेट आ गया, जिसकी वजह से मीडियम एल्कलाइन हो गया और पेनक्रियाटिक एंजाइम आ गया फैट के डाइजेशन के लिए। एंड देन पैनक्रियाटिक एंजाइम कंटेन वेरियस एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ डिफरेंट डाइटरी लिपिड्स। सो इट एक्ट्स ऑन ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, जो हमारे डाइटरी फैट्स थे, डाइटरी लिपिड्स था, जिसमें ट्राइग्लिसराइड था, फॉस्फोलिपिड था, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर था। अब इस पे पेनक्रियाज के जो एंजाइम है, पेनक्रियाटिक एंजाइम, वो उस पर एक्ट करते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, पेनक्रियाटिक लाइपेज, और उसको हेल्प करता है कोलाइपेज, ठीक है, कोलाइपेज एसेंशियल होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज के एक्शन के लिए। तो ये दोनों मिलके ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। देन जो डाइट में फॉस्फोलिपिड है, उसको कन्वर्ट करने के लिए पेनक्रियाटिक सिक्रीशन में फॉस्फोलाइपेजेज E2 होता है, और जिसके प्रेजेंस में जो फॉस्फोलाइपेज लिपिड है वो कन्वर्ट हो जाता है लाइजोफॉस्फोलिपिड और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है, जो अनदर डाइटरी लिपिड है,
वो कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंजाइम के प्रेजेंट में कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटेस्टाइन में क्या क्या हो गया, इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी डाइट में फैट था, ट्राइग्लिसराइड था, वो पहले बाइल सॉल्ट के प्रेजेंस में इंटेस्टाइन में इमल्सिफाइड हुआ और उस पर पैनक्रियाटिक लाइपेज का एक्शन हुआ। ठीक है, बाइल सॉल्ट के प्रेजेंस में इमल्सिफिकेशन हुआ और पैनक्रियाटिक लाइपेज हुआ। बाकी लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइपेज का जो एक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो आपका ब्रेकडाउन हुआ है जो आपका, इसके लिए बाइल सॉल्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो बाइल सॉल्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, for emulsification of the fat with the help of lipase and gastric lipase, there is no requirement of bile salt। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज की प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन होता है, बट इमल्सिफिकेशन आपका चर्निंग से होता है, मैकेनिकल चर्निंग की वजह से आपके ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ना कि बाइल्स की वजह से। और पेनक्रियाटिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज ये सब फैट पे एक्ट करते हैं और फैट को फ्री फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड, dietary lipid contains cholesterol ester. Cholesterol esters in the presence of cholesterol esterase or bile salt के it convert into the cholesterol and free fatty acid, and the phospholipid in the presence of phospholipase A2 it converted into lysophospholipid and free fatty acid. So finally, after digestion of the dietary lipids, what are the end products? Free fatty acid, monoglyceride, cholesterol and lysolipids. So these are the product forms after digestion inside the intestine. तो intestine तक यहाँ तक digestion हो जाता है। नेक्स्ट इज बिकॉज जो और जो लिपिड जो फॉर्म्ड हुए हैं, जैसे फ्री फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, लाइसोलिपिड्स, दे आर और वाटर इनसॉल्युबल। सो उसके एब्जॉर्प्शन कराने के लिए हमें जहाँ पे साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वहाँ तक ले जाना चाहिए, ले जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, जिसके लिए मिसल का फॉर्मेशन होता है। सो व्हाट इज मिसल? व्हेनेवर द बाइल सॉल्ट combines with digested lipids it forms a मिसल। तो जो भी डाइजेस्टेड लिपिड्स हैं, क्या क्या है डाइजेस्टेड लिपिड्स में? मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बना है, फ्री फैटी एसिड बना है, कोलेस्ट्रॉल बना है, लाइसोलिपिड्स बना है। ये सारे जो डाइटरी लिपिड जो डाइजेस्ट हुए हैं आफ्टर डाइजेशन इन द GIT, दे कंबाइन विद द बाइल सॉल्ट, एंड बाइल सॉल्ट से ये कंबाइन करके स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं मिसल्स, एंड इट फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन, और ये आप हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन कराने के लिए इस डाइजेस्टेड लिपिड के लिए। ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टेड लिपिड डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए पहले मिसल का फॉर्मेशन होता है। तो मिसल्स में क्या क्या चीज़ें हो गई? मोनोग्लिसराइड्स हो गए, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, लाइजोफॉस्फोलिपिड, ये सब इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं, एक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एग्रीगेट बना के एक मिक्स्ड मिसल बनाते हैं। एक स्फेरिकल पार्टिकल होता है और इसमें बायोसॉल्ट का जो मेन कैरेक्टर है, बाहर की ओर हाइड्रोफिलिक और अंदर की ओर हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर हो जाएगा कोर, और एक्सटर्नल जो कोर होगा, एक्सटीरियर जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, जिससे क्या होगा, ये जो पूरा मिसल्स है वो एक सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, और जहाँ पे साइट है एब्जॉर्प्शन की इंटेस्टाइनल विलाइज पे, वहाँ तक इसको ये ले जाने का काम करता है। ठीक है, और मिसल इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, ना ना केवल डाइटरी लिपिड्स जो आपका ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायरमेंट होता है मिसल, पर विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसके भी एब्जॉर्प्शन के लिए मिसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड देन फाइनली दीज मिसल दे आर अलाइन टू द माइक्रोविलस सरफेस। तो जो इंटेस्टाइन के मिकोसा के जो माइक्रोविलाई वाली एरिया है, मिसल्स फॉर्म करके वहाँ तक जो डाइजेस्टेड लिपिड को वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, नाउ you can see whole process till now how it is happening inside our body. This is the fat droplet which undergoes emulsification through the agitation through the bile salt। ठीक है, वेरियस मेथड से एजिटेशन हुआ तो फैट के ड्रॉपलेट्स जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, और इस ड्रॉपलेट्स में जब
कोलाइपेज, लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज, कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज ने वर्क किया, तो इसमें आपका ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया। लिपिड जो आपका फॉस्फोलिपिड था वो आपका कन्वर्ट हो गया लाइजोफॉस्फोलिपिड में और फ्री फैटी एसिड्स में, और ये सारे मिलके विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट फॉर्म द मिक्स्ड मिसल्स। तो डाई हमने माउथ में लिया, माउथ में लिंगुअल लाइपेज था जिसने शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड को डाइजेस्ट किया। शॉर्ट चेन मीन्स लेस देन 6 कार्बन चेन, मीडियम चेन 6 to 12 कार्बन चेन्स, ठीक है। देन इट एंटर्स द स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज उसने भी डाइजेस्ट किया शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड को, एंड देन कॉजेज breakdown of this short chain and medium chain fatty acid. Then this digested part enters into the first part of the intestine, small intestine, duodenum, where in presence of the bile salt, in presence of the pancreatic enzymes, it again break down into the smaller unit, monoglyceride, free fatty acid, and they all together assemble along with the bile salt to form a miscellus which promotes its absorption. तो miscellus का फॉर्मेशन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? देन एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है? पहले तो साइट कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा फैट का? ब्रश बॉर्डर ऑफ एंटीरोसाइड, जो आपके इंटेस्टाइन के जो ब्रश बॉर्डर साइड है, अगर ये इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, ये इंटेस्टाइन की सेल है, तो ये ब्रश बॉर्डर साइड है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेशली विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन? जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। जेजुनम एंड इलियम के जो ब्रश बॉर्डर होते हैं एंटीरियर साइड, वहाँ पे फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। एंड एब्जॉर्प्शन के टाइम क्या होता है? जो मिसल्स बने थे, अब बाय सॉल्ट अलग हो जाएगा और फ्री फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड जो है ये मिसल से सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद जितने भी आपके फैटी एसिड्स हैं, चाहे वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है या मीडियम चेन फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड आपका ब्रेकडाउन हुआ है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो फैटी एसिड कौन से हैं? शॉर्ट चेन फैटी एसिड कुछ हो सकते हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड हो सकते हैं, और ग्लिसरॉल। तो ये सब मिलके वॉट ईजिली इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन है वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो शॉर्ट चेन और जो मीडियम चेन फैटी एसिड है, इट कैन पास थ्रू मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, concentration gradient different through the membrane, it diffuses from intestinal lumen into the anterior side। तो पैसिव डिफ्यूजन से सेल के अंदर क्या आ गया? मोनोग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, लाइजोलिपिड्स, ये सारा चीज़ आ गया, and from there it enters into the interstitial phase and directly into the blood। तो जो भी आप फैट हमारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं और मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन से इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। बट जो लार्जर होते हैं, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, दे आर कैरियर मीडिएटेड, दे आर कैरियर डिपेंडेंट, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं डिफ्यूज़ हो पाते हैं, उनको कैरी करने के लिए कुछ कैरियर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। और इस फैट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टर होता है, दैट इज़ द फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 4, फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 4। और इससे जो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड अंदर आ जाता है, एंट्रियोसाइट में फैटी एसिड आ गया, लॉन्ग चेन फैटी एसिड आ गया, बाकी ग्लिसरॉल आ गया, कोलेस्ट्रॉल, लाइजोलिपिड, ये सारा चीज़ एंटर हो जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और इनसाइड आने के बाद जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, दे इट अंडरगोज 2 प्रोसेस इनसाइड द इंटेस्टाइन। एंटेरोसाइट में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, किसमें? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स वाले केसेस में। Small chain fatty acid and medium chain fatty acid directly enter into the enterocyte and from there it enter into the blood। वो डायरेक्ट ब्लड में चले जाते हैं, जो आपके इंटेस्टाइन के अराउंड पोर्टल वेन का जो पूरा सिस्टम है उसमें चले जाते हैं। पर जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, जो ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू इंटेस्टाइन से एंटीरोसाइट में आते हैं, तो एंटीरोसाइट में एंटर होने के बाद तो क्या क्या एंटर हुआ है आपका? मिसल से बाइल सॉल्ट अलग हो गया और फ्री फैटी एसिड, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, लाइजो फॉस्फोलिपिड,
कोलेस्ट्रॉल, ये सारा चीज़ आपका फ्रॉम इंटेस्टाइन इट एंटर इनटू द एंटीरोसाइट। इनसाइड द एंटीरोसाइट क्या होता है कि आपका जो फ्री फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, फिर अगेन दोनों कंबाइन करके वो बना लेते हैं ट्राइग्लिसराइड। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीएस्ट्रिफिकेशन। रीएस्ट्रिफिकेशन मीन्स अगेन ट्राइग्लिसराइड एंड ग्लिसरॉल combined forming a ester bond which is known as re-esterification, and finally production it produces ट्राइग्लिसराइड। तो पहले क्या हुआ था, ट्राइग्लिसराइड ब्रेक डाउन हुआ था मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में। जब इंटेस्टाइन में वो एंटर कर जाता है तो अगेन ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन हो जाता है और इस प्रोसेस को रीएस्टरिफिकेशन होता है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, तो आपका ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन हो गया फ्रॉम द मोनो एसाइल ग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड से मिलके ये बन गया। और आपका जो लाइजोफॉस्फोलिपिड्स था वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो गया वापस फॉस्फोलिपिड्स में, और जो कोलेस्ट्रॉल था वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस कन्वर्ट हो गया कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में। तो वापस जो चीज़ फॉर्म था इनिशियली उसमें वापस फॉर्मेशन हो गया। एंड ये जो प्रोसेस हो रहा होता है कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब हमें ट्रांसपोर्ट करना है ट्राइग्लिसराइड को, फॉस्फोलिपिड को, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को पूरी बॉडी में। तो पहले क्या होता है कि ये सब फिर क्या है, वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, तो ब्लड में इसको ट्रांसपोर्ट करना है या फिर लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इट हैज़ टू कंबाइन विद सर्टेन प्रोटीन। और इसके सर्टेन जो स्पेशल स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिससे कंबाइन करता है उसको हम कहते हैं एपोलाइपोप्रोटीन B48। एपोलाइपोप्रोटीन B48, एपो B48। तो ये सारे डाइटरी लिपिड्स के जो प्रोडक्ट्स है ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर combines with the special structural protein which is known as एपो B48, और इन कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। तो ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर प्लस एपो B48 कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज काइलोमाइक्रॉन। इट इज ऑल्सो नोन वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। काइलोमाइक्रॉन का फॉर्मेशन जाता है और फिर ये जो आपस में सब चीज़ एक पैक्ड स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होता है, उसको कहाँ पे पैकिंग होती है, पैकिंग अकर्स इन गोल्गी एपर्टस। तो काइलोमाइक्रॉन मूव टू द गोल्गी एपर्टस में जाते हैं एंड दे पैक्ड एंड इनक्लोज इन अ सिक्रीटरी वेसल में। तो पैकिंग हो जाती है गोल्गी बॉडी में और वो क्या बना लेते हैं, गोल्गी एपेरेटस में एक सिक्रीटरी वेसल्स के अराउंड अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है, एपो बी प्रोटीन है, और सराउंडेड बाय अ सिक्रीटरी वेसल। और ये जो वेसल्स होती है वो एग्जॉस्टोसिस के थ्रू लिवर से एंटीरोसाइड से निकल के लिम्फेटिक सिस्टम में चली जाती है, लिम्स में चली जाती है, लेक्टल्स में चली जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस of re-esterification and packaging which are going inside the intestinal mucus, and ये सारा प्रोसेस किसके लिए हो रहा है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड के लिए होता है। फिर जब ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं, लिम्फेटिक्स में आ गए, लिम्फेटिक से आपका ब्लड सर्कुलेशन में आ गया, ब्लड सर्कुलेशन से तो या तो ये लिवर में चले जाएंगे या फिर इसको जहाँ स्टोर होना है काइलोमाइक्रॉन को एडिपोज टिश्यू में जाके, पूरी बॉडी में जहाँ एडिपोज टिश्यू है वहाँ जाके इसका स्टोरेज हो जाता है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द काइलोमाइक्रॉन, जो काइलोमाइक्रॉन जो बना है, क्या क्या बना है, मेनली ये लार्जेस्ट लाइपोप्रोटीन है, साइज सबसे बड़ी होती है, बट इसके अंदर जो है डेंसिटी है बहुत लो होती है, लीस्ट डेंस होता है बट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इन साइज। तो इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या मिलके काइलोमाइक्रॉन बना है, ट्राइग्लिसराइड 85 से 92% इसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जिसमें आपका मेन लिपिड का कोर होता है, और 6 से 12% फॉस्फोलिपिड, 1 से 3% कोलेस्ट्रॉल होता है,
एंड इट फॉर्म्स द आउटर शेल। आउटर शेल जो होता है वो आपका फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? ApoB48 स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेबलाइजिंग दिस पार्टिकल। जी, काइलोमाइक्रोन को स्टेबलाइज करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, सब कुछ इसमें इंटीग्रेटेड हो, इंटीग्रेट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए ApoB48 ये प्रेजेंट होता है। तो ये काइलोमाइक्रोन जो बना है वो आपके ब्लड में एंटर हुआ है या लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हुआ है। इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइलोमाइक्रोन? इसका मेन फंक्शन है इज टू ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट। जो भी डाइटरी फैट है उसको ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम एंड फ्रॉम लिम्फेटिक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये मेन एज अ ट्रांसपोर्टर का काम करता है। और क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी? बिकॉज फैट जो होता है वो आपका इंसॉल्युबल होता है वाटर में, और काइलोमाइक्रोन जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ApoB48 प्रोटीन, प्रोटीन की प्रेजेंस में ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है वैसे। और उसकी वजह से इट कैरीज द न्यूट्रिएंट टू द टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी। सारी बॉडी को न्यूट्रिएंट ये प्रोवाइड कराता है काइलोमाइक्रोन। इन दिस वे we come to the end. Now let us summarize फैट डाइजेशन। तो क्या क्या हमने पढ़ा फैट डाइजेशन में? जो भी हमने माउथ में जब फैट लिया, खाना खाया, तो माउथ में लिंगुअल लाइपेस, जब स्टमक में पहुंचा, स्टमक में एजिटेशन की वजह से और बाइल सॉल्ट, स्टमक में इमल्सिफिकेशन हुआ एजिटेशन की वजह से, स्टमक में जो गैस्ट्रिक लाइपेस थे उसकी वजह से स्मॉल अमाउंट का ब्रेक डाउन हुआ और कुछ फैटी एसिड का फॉर्मेशन हुआ और इमल्सिफिकेशन हो गया। जब वो आपका इंटेस्टाइन में पहुंचा वहाँ पे बायोसॉल्ट के प्रेजेंस में इमल्सिफिकेशन हो गया। तो ये जो इमल्सिफाइड फैट है इंटेस्टाइन में, ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन किया फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड में इन द प्रेजेंस ऑफ पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंड एंटेरिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड एंटेरिक लाइपेज की प्रेजेंस में ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ। फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलाइपेज जो पैनक्रियाज सीक्रेट कर रहा है उसके प्रेजेंस में ये फैटी एसिड एंड लाइसो फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट हो गया। और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज या कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज जो कि पैनक्रियाज रिलीज कर रहा है उससे इसको कन्वर्ट कर दिया इंटेस्टाइन में। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स है कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, लाइसोलिप फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, देन दे एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट, व्हाट आर द रूट ऑफ द एब्जॉर्प्शन? तो अगर शॉर्ट चेन है, मीडियम चेन फैटी एसिड है, तो दे आर वाटर सॉल्युबल, सो दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द lumen into the enterocyte and then into the portal vein, simple by simple diffusion। तो सिंपल डिफ्यूजन से पोर्टल ब्लड में आ जाते हैं। बट those which are लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो जब एंटीरोसाइट के अंदर एंटर करते हैं तो इट अगेन रीएस्टरिफाइड, तो रीएस्टरिफाइजेशन होता है जिसकी वजह से न्यू ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करते हैं फ्रॉम मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड से इनसाइड द एंटीरोसाइट। और जो ये ट्राइग्लिसराइड जो फॉर्म होते हैं वो एपोप्रोटीन के साथ कंबाइन करके बनाते हैं काइलोमाइक्रोन। और these chylomicrons थ्रू द बेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स जो होता है एक्सोस्टोसिस के थ्रू ये आपका थोरेसिक लिम्फ डक्ट में आता है और यहाँ से काइलोमाइक्रोन आपका थोरेसिक डक्ट से आपके सर्कुलेशन से पूरी बॉडी में ये फ्लो कर जाता है। तो इन दिस वे दो फैट विच वॉज डाइजेस्टेड इन द वेरियस स्टेप गेट एब्जॉर्ब from the intestine into the blood and from blood into the whole circulation. I hope you can now understand digestion and absorption of lipid. Thank you so much.